Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namoli sir. Friends, as you all know, we have started this wonderful series from June 2022, and this is the free webinar series we have started. And today I'm happy to say that today is our 77th session of that series, Guruji Ke Saath Gurua. And today I feel very happy to welcome our admin of PHF, Dr. Padma Shri Shende Madam. Madam has done her DHMS from GHMC Solapur, and she is practicing in Mohol, and she is treating kidney stones, and now she is known as a specialist for treating kidney stones. Earlier she used to practice allopathy, but since she met our Guruji Dr. Liaquat Namole sir, she started practicing solely homeopathy, and she left allopathy, and she's not only practicing homeopathy, but she's getting wonderful results, and in very short period of time she gained confidence in treating difficult cases as well. So this is the beauty of mind method, and this is the beauty of learning from our Guruji Dr. Liaquat sir. So without wasting much time, let's welcome Dr. Padma Shri Shende Madam with huge round of applause. Welcome, ma'am. Welcome, Padma. Welcome, Padma. Welcome, beta. Welcome, Perry. Thank you, sir. Thank you, Pranita. Thank you, Mansi. Friends, Dr. Padma is my small sister, and she's one of the very, very sincere girls I've seen in my life. She's practicing in a small town called Mohol, which is very close to Solapur. But trust me, you can practice anywhere if you are sincere enough, if you are hardworking. You can make name, you can make money, you can cure patients from any place. So it's not that if you're practicing in some village and you say that I'm a general practitioner and I have problems in my family, my in-laws don't allow me. Even if you're sitting at home in any place, you can get famous and have patience. You just need to give good results and you get patience. Without using specifics and all, if you really practice on mind, the patient should feel better here. You know, the moment he starts feeling better here, you start getting patient references. Okay. And still, if you all want success mantra, we all are there to help. Padma, today is Padma's day, my favorite Paddy. Over to you, Rita. Welcome. Thank you, sir. Now we start directly with the case. I'm sharing the screen. Good evening, friends. Today we are going to study the new remedy, which is the remedy of the new era. Starting with the gratitude to डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन, जिनकी वजह से आप और हम सब यहाँ पे मिले हैं और इतनी बड़ी अच्छी साइंस का जो उन्होंने इन्वेंशन किया है, और gratitude to PHF family and Namole sir. First, I'm going to share the case. It is a case of a lady, 70 years old. Having complaints of hard stools and pain in the anus and after defecation. It was more than 10 years that she is having these complaints. And she's also having the joint pain since 3 years. There is severe burning pain in abdomen and at the anus continuously. Means the patient ko ye pain continue rehta tha even after the defecation. Pain is aggravated after sitting and relieved by lying down.
and there was weight loss due to the low intake. And the observation is the lady is very lean and thin and fair with white hair, and the expression on the face of the lady is very calm. एक शांत जो म्हणतो ना आपण म्हणतो वो फीलिंग था उसके फेस पे, दो शी इज इन द पेन. Now the history narrated by the IPR, history given by the IPR is she is the most responsible and caring lady of the house, and she had 2 sons and 2 daughters. All are married. One of her grandson is handicapped since birth, and her husband died before 15 years. After the death of the husband, she is engaged herself in the religious activity. She is following the rules of that religion very religiously, and she is very sensitive by nature and get affected very easily. Means उन्होंने बताया कि अगर सर्वेंट को भी कुछ हुआ तो वो बहुत परेशान हो जाती है. And cares more about the family and the friends, and spends her most of the time in reading books. उसको जो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. इवन रात के सोने तक वो रिलीजियस बुक जो है पढ़ती रहती है. Rarely she gets angry, and only when someone speaks lie she gets angry. She is very fastidious by nature and grateful to everyone. She is very helping to everyone. हर किसी को मदद करते हैं, इतना कि अपना सामान भी दूसरे को दे देते. इवन अगर वो सामान उससे चाहिए रहता है तो भी वो किसी दूसरे को अगर नीड रही तो दे देती. नाउ द कन्वर्सेशन. मैंने पूछा बोले क्या तकलीफ है, तो पेशेंट ने कहा कि पाइल्स की तकलीफ है और सीवियर बर्निंग होती है. तो मैंने पूछा इस बीमारी को लेके आपको क्या लगता है, तो पेशेंट ने बताया कि बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, एंड इवन द पेशेंट हैड ऑपरेटेड फॉर द पाइल्स बिफोर 2 years. ऑपरेशन भी किया, फिर भी तकलीफ जो है कम नहीं. दोनों बेटे तो खुद डॉक्टर्स है, उसके 2 जो लड़के हैं वो 2 डॉक्टर्स है, वो भी बहुत सारी दवा बदल बदल के देते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इतना कहने के बाद में वो हंस पड़ी. देन आई आस्क ओके आपको इस बात से क्या टेंशन या कोई किस बात में आप ज्यादा सोचते हो, पूछा. तो पेशेंट ने बताया वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है. दोनों बेटे डॉक्टर है और दोनों बहू भी अच्छी है. उसके जो दोनों बेटे हैं वो भी एक के साथ रहते हैं सब लोग. थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता है, वो ग्रैंडसन को लेके होता है, उसको लेके टेंशन आता है. पर फिर भी मैं भगवान पे पूरी भरोसा या श्रद्धा रखती हूँ और उसी पे सब छोड़ देती हूँ. और उसके बाद पेशेंट ने कहा कि क्या कर सकते हैं, जब नसीब में है तो उसे कोई नहीं बदल सकता. तो मैंने पूछा क्या सोचाती है इसको लेके आपके दिल की. यही कि हमारे घर में तो ऐसा तो कोई भी नहीं है अभी तक, ऐसा कोई भी नहीं था, या ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सोचते रहती हो. जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन वाज जब तकलीफ होती है तो क्या करते हो. तो पेशेंट ने बोला एक तो मैं आराम करती हूँ, या शी फील्स बेटर बाय लाइंग डाउन, एंड या फिर किसी से बातचीत करती हूँ तो अच्छा लगता है. दिस इज द केस. समझ में आया सभी को. हेलो. Yes, ma'am. तो अभी एनालिसिस सब लोग बताएंगे, फिर बाद में मैं उसको डिस्क्लोज करती हूँ. एक केस थोड़ा सा मैं लेंदी हो गया है क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार मेडिसिन पहले दे चुकी थी, उसके बाद में भी वो टेम्पररी रिलीफ होता था, तो मैंने सब मिला करके अभी आपको दिया है. हेलो. मैम गुस्सा उसको किस बात का आता है बोलिए, जरा रिपीट करें. अगर कोई उसे झूठ बोलता है ना तो उसको गुस्सा आता है. हेलो. हेलो. रिलीजियस रिलीजियस हाँ रिलीजियस है बोले तो उसके हस्बैंड के डेथ होने के बाद में उसने जो सत्संग जो उनके एरिया में रहता है वहां पे वो डेली जाती है. एलिमेंट डेथ Yes. ऑफ हस्बैंड.
उनके हस्बैंड का डेथ होके तो 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी उसको तकलीफ जो है 1-2 साल से हो रही है। एंग्जाइटी अदर फॉर हेलो। एंग्जाइटी अदर फॉर एंजाइटी अदर्स फॉर। ओके। एंजाइटी क्यों सर? डॉक्टर हेलो सर, आप रिपीट ऐसे एक एक मत बताइए, ओवरऑल जो फील है ना वो बताइए। पेशेंट आपको कैसी लगती है, क्या लगता है आपको केस के सुन के, केस सुनने के बाद में आपके दिल में क्या सोच आती है? जैसे हम पेशेंट को पूछते हैं वैसे हमें भी सोचना है। लेडी आपको टोटलिटी कैसी, सोच के बताइए। कैसे लगी? हाँ। टोटलिटी सोच के बताइए, एक एक रूब्रिक हंटिंग मत कीजिए, है ना। माइंड मेथड मतलब या प्रिस्क्राइबिंग का मतलब रूब्रिक हंटिंग नहीं है। हाँ तो तो सोच के आराम फेल हो से जाता है। बताइए। हाँ, फिर इट फेल्स ना इफ यू थिंक इन पार्ट्स। तो फिर ये कीनोट वाले और पर्टिकुलर वाले करते हैं, उसमें उसमें भी कुछ फर्क नहीं है। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ बोलिए सर। ये पेशेंट मुझे कंटेंट लगा बहुत, सिंपैथेटिक भी हम्म। है, और जितना हम्म। हो सकता है उतना मदद करता है। वो जनरस टू लगा, और हम्म। वो भगवान पर उसका पूरा भरोसा है। वो जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, ऐसा लगता है हमको। हम्म। मुझे ऑलिव शक्ल लगा। ओके। डॉक्टर गणेश को कुछ बोलना है? हाँ। डॉक्टर गणेश, आपने हाथ ऊपर किया था, बोलिए। पद्मा, क्या हुआ? कोई बात नहीं कर रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हेलो। सर आवाज हाँ अब जा रही बोलिए। है। आवाज आ हाँ रही जी, हाँ सर। जी, बोलिए। हाँ। सर हाँ आ रही बिल्कुल। सर, और बोले। मैंने उस हम उस औरत का ओवरऑल फील से मुझे ऐसा लगा है, हम्म। ये औरत तो चिंता करती है, फिर भी उतना चिंता नहीं करती है, किंतु चिंता चिंता करना मजबूरी हो गया है। तो इस हिसाब से वो हमको सल्फर का शेड दिखाई देता है। ओके। Ma'am, good evening. Can I speak? यस मैम। Ha, ma'am. Ma'am, I've taken few rubrics here. I would like to mention them. Ma'am, first I've taken dullness, pain from. Then I took हम्म। carried, desire to be carried. And then उनको झूठ बोलना पसंद नहीं है बिल्कुल. हम्म। तो मैंने लिया ट्रूथ टेलिंग प्लेन, मतलब उनकी बातों में भी सच्चाई थी थ्रू आउट द केस. तो वहां से मैंने लिया ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ एंड लव हम्म। फैमिली फॉर. और उन्होंने बोला कि नसीब नसीब के आगे किसी का नहीं चलता है. तो इसके लिए मैंने लिया मैम मेंटल पावर इंक्रीज. और ओवरऑल मुझे जिस तरह लेडी शी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड शी इज इन अ रिजॉल्व कंडीशन. शी हैज टेकन she has taken things very lightly because she is smiling and answering to you in spite of the pain and the thing she is persecuted since so many days. But since she is in a cool and calm, composed lady, so I took हम्म। awareness heightened. Ma'am, I'm feeling it is triticum vulgaris. ओके। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. अवेयरनेस हाइटन ये क्यों लगा मैडम आपको? मैम मतलब वो ओवरऑल जो भी उस जिस हाल में है, जिस कंडीशन में है, वो दोनों हम्म। बच्चे डॉक्टर रहने के बावजूद भी वो किसी के ऊपर ऐसा मतलब शी इज नॉट इनटू एंगर और बाइटिंग टम्बलर कि तुम दोनों बेटे डॉक्टर हो फिर भी मेरा इलाज जल्दी नहीं. यू आर नॉट रेडी टू पुट मी आउट ऑफ दिस एगनी एंड पेन. एंड इवन दो द बॉय इज हैंडीकैप, मतलब कोई और रहता तो बोलते दोनों बच्चे डॉक्टर है फिर भी ऐसा बच्चा कैसा पैदा हुआ हमारे खानदान में.
the grandson, and why we are like are we cursed or something like that. She is not in any of that mode, and she's totally calm, cool, resolved, and she's smiling throughout. तो मुझे थोड़ा ये generous भी है मैम. तो overall I हाँ thought like that. Thank ओके you. Yes, ma'am. Can I speak? यस मैम. Yeah, so lady एकदम cool, calm and composed, and उसका demeanor भी ऐसा है कि face पे कुछ ऐसा anxiety उसको दिख नहीं रहा है उसका, as you have मेंशन. mentioned in the case. And वो बोली दोनों बेटे डॉक्टर हैं, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई चीज को लेके वो dissatisfied है. So here I felt it is the content state, and she is involved in the religious activities, so religious affections के अंदर, and then generous too लगा, and there is this desire for truth, and she is herself a truthful, honest kind of a person, it seems. मतलब जितना आपने डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से, तो आई थिंक दिस कैन बी ऑलिव सैक. ओके. एंड ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट भी लगा, बाकी जो होगा वो देखेंगे, इस तरह से. ऐसे तो उसने नहीं कहा. अच्छा, कहाँ कहाँ. सब अच्छा है ऐसा तो डेफिनेटली बोली थी. हाँ हाँ. अच्छा ही बोली. हम्म. तो ये क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सब अच्छा है. कंटेंट आई फेल्ट. कंटेंट ओके. और ईगो जैसा तो कुछ लगा नहीं कि वो वेल्थ बता रही हो, क्योंकि इसका एक उस तरह का भी जाता है, बट इट इज नॉर्मली बोल रही है वो, इट शी इज नॉट बोस्टिंग, आई फील. ओके. और जो हंस के बोल रही थी ना, हम्म. उसको आपको क्या लगा. स्टेटिंग द फैक्ट्स भी जो है जैसा है वो बता रही है आपको, स्माइलिंगली बता रही है. ओके. नॉर्मली एक लेडी को कैसे फील होता है कि अगर दोनों बेटे डॉक्टर है और वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं. फील हेल्पलेस कि दो बच्चे हम्म. हैं और वो मेरी हाँ. कोई मुझे इससे निकाल नहीं पा रहे हैं. That's- तो वो तो काली ब्रोम का फील आता है, मनी सूड इन द स्लीव, बट इस तरह का कुछ इसका प्रेजेंटेशन तो लगा नहीं मैम कि पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया क्या फायदा वाली, इस तरह का तो कुछ उसका आया नहीं स्टेटमेंट. ओके. और अगर ऑलिव नहीं तो क्या होगा, ये बताइए. हेलो, और कोई. But good contribution, ना? हाँ. Very good. और सबने अच्छे से एनालाइज भी कर रहे सब. बस अच्छा कर रहे हैं. बहुत अच्छा है. जनरस क्यों ले रहे हैं आप लोग? Who has taken generous? Why are you taking generous? Who had taken generous? Hello? Generous बापू, you had taken ना generous? कौन लिया था? गणेश. गणेश नहीं. गणेश ने लिया था. गणेश, can you tell me why you took generous? And why not charitable? Why generous? सर मैंने उसको ये सोच कर लिया, जनरस तो ऐसे मेरा सोच नहीं था, किंतु मेरा ये सोच था कि जे औरत माने एलिमेंट फ्रॉम फेलियर ऑफ साइंटिफिक फेलियर सभी जगह से करा कर थक गई है, फिर भी अभी नहीं हो रहा है. तो एक नंबर
दूसरा नंबर वो सोच रही है, हम मेरे समझ में ऐसा आया जो उसके पास वेल्थ है, कंटेंट है। वो सब समझ गया मैं जनरस का सवाल पूछना चाहता हूँ। वहाँ अब जनरस क्यों लिए? जनरस में लिया था सर, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। अच्छा कोई बात। जनरस किसने लिया था? हु एल्स हैड टेकन जनरस? हु वाज दैट गर्ल हु सेड जनरस? बापू ने भी बोला था ना? सर इसका क्लोज एक डीडी आता है पोडोफाइलम का। Why did you take generous is what I want to know. अच्छा तू फोटोफाइलम मतलब यू आर गोइंग थ्रू ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। कंटेंट एंड डिजायर फॉर ट्रूथफुलनेस। अच्छा ट्रूथफुलनेस डिजायर पर ले रहे हैं आप। बहुत नैरो रूब्रिक है बट हम्म सर तुम्ही म्यूट आहात. अरे हो मी ते मिक्सरचा आवाज येतो हो म्यूट केलं होतं ते. ठीक. ये कहाँ चली गई? पद्मा कहाँ गई? हाँ सही था सही. So I want to know why you people have taken generous. Why not what is it called as? Why not benevolence? बेनेवलेंस. है ना? Anyways, चलने दो. My first remedy that I have prescribed is just sulfur. जो सल्फर का पिल था, मैंने जो उसका डॉपिंग था वो मुझे मॉकिंग जैसा लगा या डिल्यूजन वेल था और फिलोसफी उसकी एबिलिटी उसको लेके मैंने उसको सल्फर दिया था. बट दैट गेव हर ओनली पार्शियल रिलीफ. एंड इन द सेकेंड विजिट आई कंसिडर द एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वेरीज कंसिडर किया था. मैंने उसको वेनिला दिया था क्योंकि वो जो बोली ना कि मेरे सिर्फ जो ग्रैंडसन है उसके बारे में ही सोचती हूँ और बाकी किसी के बारे में नहीं. कोई टेंशन ही नहीं है उसको बाकी किसी के बारे में, लेकिन उसको पेन जो है वो कंटिन्यूस है. बट दैट सीन्स वेरी विथ कामनेस. तो वेनिला के बाद मैंने उसको नियर अबाउट 2-3 मंथ्स उसको रिलीफ मिला था. फिर बाद में उसके बाद में जो रिलैप्स हो गया बहुत सीवियर था, तब उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा ही हो गया. तो फिर मैंने थर्ड बार जब केस लिया तो जो उसकी जो हंसी थी ना, जो उसने हंस के बोल दिया था. यूजुअली हम देखें तो कोई ऐसे डेयर नहीं करता ना कि बच्चों के सामने कोई लेडी ऐसे बोले कि बाबा मेरे वो दोनों लड़के के साथ में ही आई थी मेरे पास जब आई थी. तो लड़के सामने ही और उसके सामने ही ये बोल दे कि ये दोनों डॉक्टर है लेकिन उनकी दवाई कोई काम की नहीं है, मेरे मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रही. और फिर बाद में उसके वो हंस पड़ी. तो यूजुअली वी टेक इट एज मॉकिंग में ही ले लेते हैं, लेकिन जो उसका जो हाउ था ना वो थोड़ा डिफरेंट ही था. और उसके बाद में उसके जो दोनों बच्चे थे उनका रिएक्शन जो था वो कुछ नॉर्मल था. मॉकिंग में कैसा होता है ना, जो आईपीआर का रिएक्शन रहता है वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है या फिर चिढ़ जाते हैं या फिर उनको बुरा लगता है. वहां पे वैसा नहीं लगा था. तो कांग्रेट्स टू एवरीवन. ये ऑलिव सैकी हेयर रेमेडी जो मैंने उसको 200 में दिया था, उसके बाद में उसका 3 kg वेट गेन भी हो गया और उसके जो कॉम्प्लेक्स थे वो बहुत सारे रिलीफ हो गए. लेकिन फिर भी उसको मुझे 200 फिर वाटर डोज मुझे 2-3 बार देना पड़ा. उसके बाद भी वो अभी उसका 5 kg वेट गेन भी हो गया और जो बर्निंग था वो पूरा बंद हो गया. कॉन्ग्रेचुलेशन. पहले किसने बताया था? बापू सर ने. और श्वेता तुमने भी बताया था. बापू बापू. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी. यहाँ पे Yes. डीडी पे ना जैसे सबने बताया पोड़ो और कॉकुलस भी मैंने दिया था. कंटेंट जो था ना वो बहुत मार्क कि उसको किसी बात की कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन जो है वो बोल देती इस रेमेडी की खासियत है.
एग्जैक्ट बोलने का है क्या? हेलो, म्यूट कर लो अपने आप को। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हो दिसते. Yes, ma'am. दिसता है? हो. ओके। ये मेरा रेपर्टरी चार्ट है जो मैंने रुब्रिक्स लिए थे, ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ था, क्योंकि वो बच्चों के सामने पूरा बोल दिया उसने। और जो सेकेंड रुब्रिक था वो मैंने लिया था डिस्कस डिजास्टर। उसने जो बोला ना, जो तकलीफ होती है तो आप क्या करते हैं, एक तो मैं लेट के रहती हूँ या फिर किसी से बातचीत करती हूँ तो उससे रिलीफ आ जाता है। ये रुब्रिक मुझे वहां पे मिला, जो मैंने पहले उसको टॉकिंग अमेलिएशन एक रुब्रिक है जो वैनिला का रहता है, वो लेके मैंने उसको फर्स्ट टाइम वैनिला दिया था ऑब्लिक देने से पहले। तो जब उसका अल्टरनेटिव सोचा तो फिर डिस्कस डिजायर थ्रू, उसके बाद में उसको रिलीफ था। ये 3 रुब्रिक्स लिए तो मैंने उसको ऑब्लिक दिया था। दिस इज ऑलिव सेल। इट इज अ प्लांट रेमेडी। और इसकी पर्सनालिटी हम देखें तो वेरी सेंसिटिव एंड पर्सन ऑफ प्योर सोल एंड डिवाइन पर्सनालिटी बोलते हैं। संत महात्मा जो रहते हैं वो पर्सनालिटी रहती है, वेरी अफेक्शनेट रहती है और स्पिरिचुअल और ऑनेस्ट रहती है और कंटेंट, काइंड, जनरस और ग्रेटफुल पर्सनालिटी रहती है। इस रेमेडी की जो रुब्रिक्स है ना, ज्यादातर पॉजिटिव रुब्रिक्स ज्यादा है इसमें। पर्सन ऑफ प्योर सोल तो उसको जो उस प्योर सोल जो रहता है उसका जो अंतरात्मा से वो पूरी स्वच्छ अस्वस्थ है। तो इम्प्यूरिटी नहीं रहते तो उन लोगों में एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक कंटेंट रहता है, तभी जाके हम कंटेंट रह सकते हैं। The core rubric of the olive sac is yearning. Yearning is the longing for certain things. लॉन्गिंग बोले तो तीव्र इच्छा या फिर कुछ पाने की तड़प जो रहती है उसके लिए उसको लॉन्गिंग बोलते हैं। लॉन्गिंग इज मोर देन द डिजायर। डिजायर इज ओनली इच्छा, इट इज डीपर लेवल एंड लॉन्गिंग अकम्पनीड बाय द टेंडरनेस और सैडनेस। बहुत बार जो इच्छा, जो लॉन्गिंग रहती है वो सैडनेस के साथ भी रहती है और एक जेंटलनेस रहती है। और यहाँ पे हम देखें तो yearning जो है किस बात के लिए है? yearning फॉर लव, yearning फॉर अफेक्शन एंड yearning फॉर काइंड पीपल। इसको प्यार तो चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए और उसके साथ में काइंड पीपल के लिए भी उसको yearning है। जो अच्छे बंदे रहते हैं वो उसको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एंड लव नेचर फॉर, लव ह्यूमैनिटी फॉर, लव एक्सॉल्टेड, लव फॉर इमेजिनरी पर्सन एंड एट द सेम टाइम लव विद द रॉन्ग पर्सन। ये दोनों कॉन्ट्रोवर्सी रुब्रिक्स है। यहाँ पे हम देखें तो लव नेचर फॉर, नेचर जो नेचुरली आता है वो सब चीजें जो पसंद करती है, या फिर किसी का नेचर जो गुड नेचर रहता है वो पसंद करता है, उसके लिए वो ज्यादा पसंद करती है। और ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। और लव एक्सल्ट, जब प्यार करते हैं तो दिल से। और लव फॉर इमेजिनरी पर्सन, इमेजिनरी पर्सन क्यों? जो इसका लव है वो प्योर है, इसके लिए उसको इन 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 रिटर्न उसको भी वैसा ही प्यार चाहिए रहता है। अगर वो नहीं मिला तो वो इमेजिनरी पर्सन में वो ढूंढती। और एट द सेम टाइम लव विद द रॉन्ग पर्सन। ये रुब्रिक क्यों है? तो जब वो जो उसके साथ जो रहता है या फिर जिसपे वो प्यार करती है वो पर्सन ज्यादातर जो कॉमन नहीं मिलते आजकल के जमाने में, जो प्योर हो और सच्चा प्यार करने वाले, तो वो रॉन्ग पर्सन के साथ में लव हो गया, ऐसा उसको फीलिंग आता है। प्यूरिटी, सेंसेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ द हार्ट, जो दिल है पूरा साफ है, ऑनेस्ट है, बंदी जो है पूरा ऑनेस्ट है। एट द सेम टाइम ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, जो ऑनेस्ट रहते हैं उनको डर नहीं लगता, इसके लिए वो सीधा ट्रुथ बोल जाते हैं। और एट द सेम टाइम ग्रेटिट्यूड भी है उसको,
ग्रेटिट्यूड जो किसी का भी कुछ हेल्प या फिर कुछ किसी ने उसके ऊपर दया दिखा या फिर कुछ कोई कुछ भी उसको अच्छा बिहेव किया तो उसका रिटर्न वो खुद कर देगी, क्योंकि वो उसको हमेशा ध्यान में रखती है। डिजायर्स नथिंग, ये सब जो रूब्रिक्स है, कंटेंट है, ये सब जो है क्यों होता है, क्योंकि इट इज देयर इन द डिजायर्स नथिंग, उसको कुछ नहीं रहता। हम ह्यूमन लोग ज्यादातर क्या रहते हैं, कुछ तो इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, जिसकी वजह से हम एम्बिशन लेके या फिर कुछ भी लेके आगे चलते हैं या फिर बिहेव करते हैं, उस पर हम डिसाइड करते हैं ना। तो हम कंटेंट नहीं ले सकते, कंटेंट लेने के लिए डिजायर्स नथिंग, ये भी बहुत जरूरी रहता है। एंड नाउ द डिस्कस डिजायर्स टू बी, जो कौन सी भी बात हो तो उसको डिस्कस करने से उसको अच्छा लगता है। जनरस टू, अभी जो सर ने बताया वैसे जनरस टू बोले तो जनरस हम कब लेते हैं, जब इन रिटर्न कोई आपको अपेक्षा नहीं रहती, आप हेल्प कर रहे हो लेकिन उसके बदले में आपको कोई अपेक्षा नहीं रहती। और एट द सेम टाइम चैरिटी में क्या, इस कैटेगरी में क्या आता है, चैरिटी में लोग इन रिटर्न कुछ तो अपेक्षा रख के हेल्प करते हैं दूसरे को। अभी मैं आज उसको हेल्प करूंगा तो कल वो जाके मुझे हेल्प करेगा। फिलोसफी एबिलिटी फॉर, जो पेशेंट ने बताया था ना कि जो नसीब में हो वो टल नहीं सकता। एंड नाउ द लाफिंग होल हार्टेडली, ये जो उस लेडी का लाफ था ना वो होल हार्टेडली था, वो पूरे दिल से हंस रही थी ना, जो सच है वो बोल के हंस पड़ी, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जो लाफ था वो दिल से था। एम्ब्रेसेस हिमसेल्फ, वो खुद को ही एम्ब्रेस करती है, पेशेंट जो रहता है खुद को ही एम्ब्रेस करता है। अगर कोई प्यार करने वाला जो उसके हिसाब से नहीं मिला तो खुद को ही वो एम्ब्रेस करके लेता है। यूनिफिकेशन, सेंसेशन ऑफ यूनिफिकेशन विद द यूनिवर्स, पूरे जो जग है यूनिवर्स है उसके साथ में वो यूनाइट एक होके रहती है, सब पूरा जग उसका ही है, ये ऐसे सोचती है। डिलीजन कम्युनिकेशन विद गॉड, जो ये जो बंदा है क्या करता है, जो कंप्लेंट्स उसके रहते हो देखा तो ये कौन से भी कंप्लेंट रूब्रिक में नहीं है, या फिर किसी को लेके उसको कुछ तकलीफ ही नहीं, कि डोंट रिप्रोच अदर्स और कंप्लेंट्स अबाउट एनीबॉडी। डायरेक्ट किसको बोलता है, डिलीजन कम्युनिकेशन विद द गॉड, जो है वो ऊपर वाला है, जो करने वाला है, इसको मालूम है, इसके लिए वो कम्युनिकेशन विद द गॉड रहता है। डिलीजन थॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड, और उसके लिए उसको कॉन्फिडेंस भी बेर होता है कि गॉड जो है वो अच्छा ही करेगा। सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंट एट द सेम टाइम सेल्फ सेटिस्फाइड रहती है, जो है अच्छा है, जैसे है अच्छा है। प्रोटेक्टेड फील्स, ये जो है ना, जो गॉड है उसका प्रोटेक्शन कंटिन्यू हमारे ऊपर है, एक फीलिंग उसको रहता है, इसके लिए वो इतना शांति से रह सकती है। प्यूरिटी, सेंसेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ द हार्ट, दिल सच्चा या फिर साफ। कंटेंट, रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विद द रिलीजन, इस फीलिंग जो है ना उसमें कब आता है, ये बिकॉज ऑफ ऑल दीज रूब्रिक्स। कंटेंट रिलीजियस रहता है, गॉड के साथ कम्युनिकेशन है, गॉड का कॉन्फिडेंस है उसको, और दिल जो है साफ है, इसके लिए जो कुछ भी बोल देती है वो इजीली बोल देती है ना, उसमें कुछ भी उसको अड़चन नहीं आती। is feeling up, that's why that lady told in front of his children, होपफुल, जब कॉन्फिडेंस रहता है गॉड पे तो होपफुल ही रहता है बंदा। एंगर डिसऑर्डरेबल, ये एक ही नेगेटिव रूब्रिक जो उस रेमेडी में मुझे मिला था, एंगर डिसऑर्डरेबल। एज द लेडी इज वेरी फास्टिडियस रहता है, तो उसको हर कोई चीज जो ऑर्डर में होना चाहिए, डिसऑर्डर हो गया तो गुस्सा आ जाता है। थैंक यू। द कॉमनेस्ट एंट्री जो हम क्लिनिक में मिलता है, ट्रुथ टेलिंग में और कंटेंट फीलिंग से। Any questions, guys? Any questions to Padma madam? Padma, you have anything more? नो सर। Okay, friends, any question for madam?
Hello, Pranita. Sir. No questions, madam. No questions. You can finish. Okay, sir. Ganesh, Dr. Ganesh Kumar want to ask something. Yes, Dr. Ganesh Kumar, tell. I think Dr. Ganesh Kumar, you want to ask anything? मैं बोलना चाहता था सर वेनिला जो मेडिसिन है ना, उसे हम लोग जैसे सल्फर को हम लोग, मैडम भी पहले सल्फर दी थी, मैं भी, मेरा भी अंदर आइडिया लगा पहली बार में जो सल्फर ही है, किंतु बाद में थोड़ा मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग करने से वो वेनिला के तरफ चली गई मेडिसिन। तो हम लोग थोड़ा कैच कैसे करेंगे सल्फर, और उसमें कैच कैसे करेंगे जो थोड़ा जैसे सल्फर को इजीली पकड़ लेते हैं उसी तरह से वेनिला को कैसे इजीली पकड़ ले, इसको बताने से अच्छा रहता। वेनिला नहीं है आज का रेमेडी, आज का रेमेडी ऑलिव सैक है। हाँ सर, आप यही पूछ रहे हैं ना? ऑलिव सेक, हाँ ऑलिव सेक का ही माने कैसे थोड़ा एंट्री हम लोग पकड़ ले थोड़ा जल्दी। बोलिए पद्मा मैडम। वेनिला का जो मेन रूब्रिक है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवरऑल लव बन रहता है। अगर इस लेडी के केस में मैंने जब सोचा कि वो बच्चे को लेके सोचती रहती है, तो एट द सेम टाइम वेनिला जो है ना सिर्फ चिंता करती है, एक्शन ज्यादा नहीं लेती। वो उसका कारण ही वो एंजाइटी उसकी वजह से होती है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ही होता है। और वेनिला एक एंगर का जो शेड है ना, वो वेनिला में ज्यादा दिख जाता है। इसमें इस लेडी में एंगर कहीं पे भी नहीं दिखा सर। और मैंने भी पहले फर्स्ट टाइम जो दिया था ना वेनिला ही दिया था, लेकिन बाद में जब पूरा केस फिर से एनालाइज किया तो ये रियलाइज हो गया कि इस लेडी को एंगर कहीं पे भी नहीं है। और ट्रुथ टेलिंग जो है ना वो वेनिला में भी है और ऑलिव में भी है। लेकिन ट्रुथ टेलिंग जो है इसका जो इजीली है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलिव सैक में। और वेनिला को एलिमेंट्स फॉर्चून रिवर्सल का कंप्लेंट रहता है ना, कम्युनिकेटिव रहती है वेनिला। और इसमें मैंने जब बेटा कन्वर्सेशन एनालाइजेशन में वेनिला है, तो उस रूब्रिक को डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्कस डिजायर जो था ना वो ऑलिव सैक का था। Okay. Vanilla is communicative, please remember. And very nicely, madam has said that vanilla will only keep worrying. Okay. Vanilla में action नहीं होता है. The difference between cocculus and vanilla is cocculus realizes, vanilla doesn't accept the situation. The acceptance is not there in vanilla. Okay. Both are grateful. Actually, gratitude vanilla में भी है और दोनों में भी है, लेकिन मेन उसका फर्क यही है। और ट्रूथ टेलिंग प्लेन थोड़ा सा ऑलिव सैक में आपको एक भोलापन बहुत ज्यादा नजर आता है कि यार कितना सिंपल इंसान है, ये क्या है, ये ऐसा लगता है अपने को, ये क्या है, कितना सादा है, कितना सिंपल है ना। ओके ओके Pranita, you can finish, I think. Yes, sir. Thank you so much, ma'am, for a wonderful session. Thank you. It was really Thank you, sir. Thank you, ma'am. For us, like, for sir, it must be a common remedy. He must be seeing olive sac patients, but we as students of sir cracking olive sac is really, we can say you have really achieved success in homeopathy. From GP to homeopathy, converting from GP to homeopathy, and that too practicing in village and cracking olive sac case is really a proud moment for sir also, and we as a core team members of PHF, we are really happy from bottom of our heart. Yes. Thank you so much. Let's crack such cases, such remedies, and make our mentor more proud. Yes, I'll be very happy. Thank you. Thank you, Padma madam. Thank you so much, sir. Thank you everyone for joining, and thank you, my team PHF.
Thank you, everyone. Thank you, Padma. Thank you, Thank beta. you. Padma, much, thank all. you. Thank Thank you. you. Thank you. Bye. Thank you, everyone.